ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے ہیں، ہمارے ستون بادلوں کو چھوتے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے اور ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ موت ہمارے دروازے پر آنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ تھے ان قوموں کے جو سمجھتی تھیں کہ وہ خدا بن چکی ہیں۔ یہ بات ہے اس گھمنڈ کی جب انسان اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے عاد کی جن کے جیسا شہر دنیا میں کبھی پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ بات ہے سمود کی جو پتھروں کا سینہ چیر کر محل بناتے تھے، اور یہ بات ہے فرعون کی جس نے زمین میں کیلیں / میخیں گاڑ رکھی تھی۔ میخیں کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ ان کی چیخیں آج بھی ہواؤں میں دفن ہیں، لیکن مکہ کے سردار ابو جہل اور امیہ بن خلف انہی کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے مگر عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا پیسہ اور ان کی سرداری انہیں بچا لے گی۔ مکہ میں ظلم عروج پر تھا، کمزوروں کا حق کھایا جا رہا تھا، یتیم کو دھکے دیے جا رہے تھے، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے ایک امید کی کرن دکھائی۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز رات کے بعد آنے والی صبح سے کیا، ایک ایسی صبح جو بتاتی ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سورج نکل کر رہتا ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الفجر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ یہ سورہ اس وقت اتری جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا تھی۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ جیسے رات کے بعد فجر آتی ہے ویسے ہی اس ظلم کے بعد فتح آئے گی، اور ان ظالموں کو وارننگ دی کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے سپر پاورز کا ہوا۔ کوئی نہیں گرا سکتا، ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہم طاقت میں سمود جیسے ہیں، ہمارے پاس مال ہے۔ دیکھو ان غریبوں کو، کہتے ہیں رب ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا تو پھر کہاں ہے ان کا رب آج؟ ہم جسے چاہیں ماریں اور جس سے چاہیں زندہ چھوڑ دیں، مکہ میں ہماری ہی چلتی ہے۔ کیا انسان صرف پیسے سے عزت پاتا ہے؟ کیا غریبی اللہ کی ناراضگی ہے؟ اللہ نے اس صورت میں انسان کی نفسیات کا آپریشن کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر بینک بیلنس فل ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے، اور اگر جاب چلی گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یا یہ صرف ایک آزمائش ہے؟ لیکن اس سورہ میں اللہ نے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی بدل دی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم اس آخری آواز کی بات کریں گے جو ہر کامیاب انسان مرتے وقت سننا چاہتا ہے۔ وہ آواز جو کہتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی، اور وہ کوڑا جو اللہ آسمان سے برساتا ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم اسی ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔
कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की और कसम है जुफ्त और ताक की और कसम है रात की जब वो चलने लगे। क्या इन चीजों में अक्लमंद के लिए कोई कसम नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, अरम के साथ जो बड़े सुतूनों वाले थे, कि इन जैसा शहर दुनिया के मुल्कों में पैदा ही नहीं किया गया, और समूद के साथ जो वादी में चट्टाने तराशते थे, और फिरौन के साथ जो मीखों वाला था। ये वो लोग थे जिन्होंने शहरों में सरकशी मचा रखी थी और वहां बहुत फसाद फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। यकीनन तुम्हारा रब घात में बैठा है। ये अब इस सूरह की गहराई में उतरते हैं। आयत 1 से 2। वल फज्र वलियालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। अल्लाह यहां वक्त की कसम खा रहा है। फज्र जो उजाले की अलामत है, लेकिन ये 10 रातें कौन सी हैं? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु जो रईसुल मुफस्सिरीन है, जुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं। सही बुखारी हदीस 969 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों जुल्हज्जा के शुरू के दिन में किए गए नेक आमाल अल्लाह को बाकी साल के किसी भी दिन के आमाल से ज्यादा महबूब हैं। सोचिए, अल्लाह उन दिनों की कसम खा रहा है ताकि हमें बता सके कि वक्त कितना कीमती है। आयत 3। वश्शफ़अ वल वतर, और कसम है जुफ्त और ताक की। जुफ्त यानी जोड़े और ताक यानी अकेला। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ताक से मुराद अल्लाह की ज़ात है जो अकेली है, और जुफ्त से मुराद मखलूक है जो जोड़ों में है। यानी खालिक और मखलूक दोनों गवाह हैं कि हिसाब का दिन आने वाला है। अल्लाह मक्का के काफिरों से और हम सब से मुखातिब है। तुम अपनी छोटी सी ताकत पर उतराते हो? जरा हिस्ट्री उठाकर देखो। आयत 6 से 8। आद और इरम। कौम आद वो लोग थे जिनकी हाइट और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। कुरान कहता है, अल्थी लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, उन जैसा शहर दुनिया में बनाया ही नहीं गया। उन्होंने अरम बनाया था जो सुतूनों वाला शहर था। वो कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वत, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो वो ऐसे जमीन पर गिरे जैसे खजूर के खोखले तने। उनकी टेक्नोलॉजी उन्हें बचा नहीं सकी। इतनो समूद, ये वो इंजीनियर्स थे जो मैदान में घर नहीं बनाते थे बल्कि पहाड़ों को काटकर डिजाइन बनाते थे, जैसे आज मदाइन सालेह में है। वो पत्थर तराशते थे मगर उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। हमें कौन हरा सकता है? हमने पहाड़ों को काट कर घर बनाए हैं। हमारे सतून बादलों को छूते हैं। ये जमीन हमारी है। फिरौन दिल औताद, फिरौन को मीखों वाला, ओनर ऑफ पेग्स कहा गया। इसका मतलब है इसके पास इतनी फौज थी कि जब वो खेमे लगाते थे तो हर तरफ मीखें ही मीखें होती थी, या फिर वो लोगों को सजा देने के लिए उन्हें मीखों से जोड़ देता था। जो मेरी नाफरमानी करेगा उसे जमीन में मेखों से जकड़ दिया जाएगा। उन सब का अंजाम क्या हुआ? आयत 13। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अजाब दिया, बल्कि कहा अजाब का कूड़ा बरसा दिया। जब कूड़ा लगता है तो उसकी आवाज और दर्द इंसान को हिला देता है। और फिर एक बहुत खौफनाक बात कही। आयत 14। इन्न रब्बका लबिल मुरसाद, बेशक तुम्हारा रब घात में है। मुरसाद उस जगह को कहते हैं जहां शिकारी छिपकर शिकार का इंतजार करता है। इसका मतलब है जालिम को लग रहा है कि वो बच गया है, वो आजाद घूम रहा है, लेकिन उसे खबर नहीं कि वो अल्लाह की रेंज में है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगा, शिकंजा किस दिया जाएगा। दोस्तों, ये आयत हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो लोगों का हक खा रहा है और समझता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। सीसीटीवी कैमरा तो खराब हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मरसाद कभी बंद नहीं होती। अब सीन चेंज होता है। हिस्ट्री से निकलकर आज की बात, हमारी और आपकी बात। आयत 15 से 16। जब अल्लाह इंसान को पैसा देता है, इज्जत देता है, तो वो कहता है, रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, मैं तो हूं ही स्पेशल। लेकिन जब अल्लाह उसका रिस्क तंग करता है टेस्ट लेने के लिए, तो वो फौरन शिकायत करता है, रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती पकड़ी गई। हमने समझ लिया कि पैसा बराबर अल्लाह की रजा,
गरीबी बराबर अल्लाह की नाराजगी। हालांकि ये दोनों टेस्ट पेपर्स हैं। अमीरी शुक्र का इम्तिहान है और गरीबी सब्र का। कारून के पास पैसा था मगर वो जलील हुआ। बिलाल के पास कुछ नहीं था मगर वो इज्जत पा गए। तो इज्जत बैंक बैलेंस में नहीं, किरदार में। अल्लाह कहता है, कुल्ला, हरगिज नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तुम जलील गरीबी की वजह से नहीं हुए बल्कि अपने करतूतों की वजह से हुए हो। आयत 17 से 20। तुम्हारा मसला क्या है? 1. ला तुक्रिमून अल यतीम, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं, यहाँ लफ्ज इकराम, इज्जत यूज हुआ है। इसके सर पर हाथ रखना उसे अपना समझना। अरे देखो जरा, इन कपड़ों को तो देखो, फटे हुए हैं। वला तहिद्दून, तुम गरीब को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। खुद देना तो दूर, दूसरों को भी नहीं बोलते। 3. वताकलून तुरास, तुम विरासत का माल पूरा का पूरा खा जाते हो। बहनों का हिस्सा, कमजोरों का हिस्सा सब हजम कर जाते हो। 4. वतुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल से बेइंतहा पागलों वाली मोहब्बत करते हो। यही वो जुर्म है जो आज हमारी सोसाइटी को खा रहे हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? ये पैसा, ये जमीन, ये विरासत सब यही रह जाएगा, क्योंकि एक दिन आने वाला है। आयत 21 से 23। कुल्ला इजा दुक्कतल अर्ज़ु दुक्का दुक्का, वो दिन जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी। दुक्का का मतलब है किसी चीज को हैमरिंग करके पाउडर बना देना। कोई बिल्डिंग, कोई महल बाकी नहीं रहेगा, और तुम्हारा रब आएगा जैसे उसकी शान के लायक है, और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। इस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। सही मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सोचिए वो मंजर, जब इंसान ये देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। उस वक्त इंसान एक जुमला बोलेगा, और यह कुरान के सबसे दर्दनाक जुमलों में से एक है। या लैतनी क़द्दमत लहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। गौर करें, वो ये नहीं कहेगा कि काश मैंने आखिरत के लिए कुछ किया होता। वो कहेगा अपनी जिंदगी के लिए। अब उसे समझ आएगा कि दुनिया तो सिर्फ एक धोखा थी, एक एग्जाम हॉल था। असली जिंदगी तो ये है जो अब शुरू हुई है, लेकिन अब काश बोलने का वक्त खत्म। उस दिन अल्लाह कहेगा, आज मैं वैसा अजाब दूंगा जो कोई नहीं दे सकता, और वैसा जकड़ूंगा जैसा कोई नहीं जकड़ सकता। रुकिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। इस भयानक मंजर, चीखो पुकार और पछतावे के बीच में एक ऐसी आवाज होगी जो बिल्कुल पुरसुकून होगी। ये आवाज अल्लाह की तरफ से आएगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने सूरत अल बलद की तरह घाटी को पार किया, जिन्होंने सूरत अल फज्र की वार्निंग को समझा। आयत 27 से 30। या इथन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, ए वो रूह जो दुनिया की मुश्किलों में, गरीबी में, अमीरी में अल्लाह से राजी रही, जो कभी डगमगाई नहीं। अर्जोई इला रब्बिका राजियतुन मर्जिया, लौट आ अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। ये है वो सर्टिफिकेट जो हमें चाहिए। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, बस शामिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। यहाँ अल्लाह ने जन्नत से पहले अपने अपने बंदों में शामिल होने की खुशखबरी दी, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों का साथ मिल जाना ही जन्नत की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, सूरतुल फज्र हमें दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता फिरौन और आद का है, पैसा, ताकत, घमंड और आखिर में बर्बादी और काश। दूसरा रास्ता नफ्स मुतमइन्ना का है, सब्र, शुक्र, यतीमों की खिदमत और आखिर में अल्लाह की पुकार, मेरे पास आ जा। फैसला आज हमें करना है। क्या हम सिर्फ जमीन पर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं या अपनी असली जिंदगी के लिए कुछ भेजना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आज सूरतुल फज्र की इस तफसीर ने आपके दिल में एक नई उम्मीद और एक नया डर पैदा किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के इस सफर को जारी रखें और अगली वीडियो सूरत शम्स या अपनी पसंदीदा सूरा पर बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गफलत में सोए हुए इंसान की फजर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको नफ्स मुतमइन्ना बनाए। अस्सलाम वालेकुम।